So hello everyone. In this session, I will discuss about the Union Budget 2024-25. This budget has been introduced after the government came into power. Earlier in the month of February, interim budget was introduced. I discussed the interim budget also, and now this is a full budget, and this budget is applicable for the financial year 2024-2025. So the purpose of this discussion is just to see what topics are relevant in the prelims, how we can add the budget in the mains, and we have to link all these things with the syllabus of the prelims and mains. Okay, so before I discuss about the budget, let me just briefly say, give you an idea about the concept of budget. तो basically अगर हम budget की बात करें तो budget constitutionally we call it annual financial statement. So in the constitution the word budget is not mentioned. In the constitution the word annual financial statement is mentioned. Okay, and there is a article 112 talks about the annual financial statement which has to be presented, and this basically is prepared by the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance. तो Ministry of Finance में Department of Economic Affairs इसको prepare करती है, ठीक है? And this is given for the upcoming financial year because budget means the future estimates. तो budget का मतलब होता है कि upcoming आने वाले 1 year के अंदर जो गवर्नमेंट की मेजर रिसीट्स होंगी, गवर्नमेंट की मेजर एक्सपेंडिचर होंगे, गवर्नमेंट की मेजर बोरोइंग्स होंगी, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन द बजट. सो दिस इंडिकेट्स द एस्टिमेट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट? नाउ देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड अलोंग विद द बजट. Under Article 112, definitely this annual financial statement. Then demand for grants. Various ministries put up the grants demand. So these demands are compiled under Article 113. And then we have finance bill under Article 110. Under the finance bill, we bring the major provisions of taxation. तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करने हैं, जीएसटी में चेंजेस करने हैं, तो जितने भी टैक्सेशन सिस्टम में चेंजेस करने होते हैं, ये सारे चेंजेस हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू करते हैं, फाइनेंस बिल के थ्रू करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. So this act is basically the act for controlling the fiscal and other deficits of the government. And there has to be a fiscal consolidation framework, the fiscal policy framework, and under this budget, various documents like macroeconomic framework statement, medium-term fiscal policy, fiscal strategy statement, these are presented, right? तो ये आपके major documents हैं जो हम budget के साथ में present करते हैं. Now, as I told you, this is prepared by the finance ministry and this is prepared on the cash basis. Cash basis का मतलब जो actual amount receive होता है या actual amount payment होता है उस basis पर हम इसको prepare करते हैं. Now it is laid before both the houses of parliament, right? And it has two parts. Part A which talks about the macroeconomic part of the budget, जहाँ पर बहुत सारी schemes के बारे में बात की जाती है. For example, this year they have given the scheme of NPS वात्सल्य and others. और सेकंड पार्ट में फाइनेंस बिल होता है जहां पर टैक्सेशन प्रपोजल्स के बारे में बात की जाती है. If you talk about the related funds, so there are 3 funds. The consolidated fund, which is the main fund, जो primary fund है, जहां पर majority of the fund is coming, all the payments are being done. This is under Article 266(1). Then another fund is Public Account of India. Public Account of India basically represent the money which is capped by the government on behalf of public. Public के behalf पे जो सरकार ने पैसा रखा हुआ है और जो पैसा रिटर्न बैक करना है फ्यूचर में, that is part of the Public Account of India. Third, we have Contingency Fund of India. Contingency Fund basically is a kind of fund which can be used in case of emergency without the approval of the parliament. So these are the 3 funds, 266(1), 266(2) and 267(1). Now there are some constitutional requirements regarding the budget. Okay, जो बजट का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होता है वो क्यों होता है वो हमने देखा, आर्टिकल 112 में है. लेकिन फाइनेंस बिल भी हमें इसमें प्रेजेंट करना होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी प्रेजेंट करनी होती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही सारी अप्रूवल्स देती है. पार्लियामेंट ही सारी अप्रूवल्स देती है. और ये अप्रूवल क्यों जरूरी है? बिकॉज आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्सेशन विदाउट द
authority of law. That means taxation needs the approval of parliament. तो कोई भी एक्ट के अंदर हम चेंज लेके आते हैं, टैक्सेशन के अंदर चेंज लेके आते हैं, तो पार्लियामेंट में जाकर के ही वो चेंज हो सकता है. सिमिलरली आर्टिकल 266 टॉक्स अबाउट एक्सपेंडिचर नीड्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट की अप्रूवल हमें एक्सपेंडिचर करने के लिए भी चाहिए. गवर्नमेंट विल प्रपोज, पार्लियामेंट विल अप्रूव, राइट. एंड आर्टिकल 112 वो हमने देखा, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर causing the annual financial statement to be laid down every financial year in both the houses of parliament, right. तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस, दे आर, शी इज प्रेजेंटिंग द बजट. ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द बजट. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस. अब हम प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं, जो मेन पॉइंटर्स हैं, एंड आई विल लिंक इट विद द सिलेबस. जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, रिसेंट ट्रेंड्स हैं, हम इन चीजों को वहां से लिंक करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ द बजट. तो बजट में कहां पे फोकस किया गया है? इफ यू सी, वी हैव प्राइमरली फोकस ऑन 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ पीपल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं पुअर, द पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड. तो जो आपके पुअर हैं, हमें उन पे फोकस करना है. सेकेंडली अन्नदाता, दैट इज अ फार्मर, बिकॉज फार्मर दे बेसिकली रिप्रेजेंट the biggest sector of the agriculture, biggest sector of the economy in terms of employment. तो ये सबसे ज़्यादा employment generation sector से belong करते हैं. तो farmer, they are the foundation of the industry also, because they supply the basic raw material. They are the foundation of food security also. तो farmers को भी हमें पूरी तरह से focus करना है. Third is युवा, the youth, because we have the large young population. We have the demographic dividend opportunity right now. So this young population need to be skilled, this young population need to be provided education, employment, other facilities like startup financing. So all these things we need to provide for the yuva, youth. So it is also the priority area. And next is women, that is a mahilaएं. So again, these constitute almost 50% of the total population, and they are not completely included in the economy. They are lagging in the development socially as well as economically. So we need to include them in the mainstream economy through focusing on the women, right? तो 4 एरियाज हमारे कौन कौन से हुए? पुअर, फार्मर, युवा एंड महिलाएं. अब हमारे लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि हमें कुछ चीजों पे फोकस करना होगा. जो मेजर थीम्स हैं, तो फर्स्ट मेजर थीम इज एम्प्लॉयमेंट. वी हैव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. Because we are a young nation, where the labor supply is increasing, तो employment is a top most priority. ये देखिए, ये जो indication है, ये priority का indication है. Skill. So basically, government started focusing on the skill development in 2014-15, and after 2014-15 again, this year, the focus is back on the skill development. तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस वापस से स्टार्ट हो गया है गवर्नमेंट का, और कुछ मेजर स्कीम्स यहां पर भी हम फोकस कर रहे हैं. देन एमएसएमई, द स्मॉल बिजनेसेस. तो जो एमएसएमईज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, दे आल्सो नीड टू फोकस, because they provide large number of jobs, they contribute heavily in the manufacturing, they contribute heavily in the exports, right? And they are prevalent in all the sectors. Then we have middle class. Middle class, these people are the taxpayers, these people are the workers, these people are the entrepreneurs. So we need to focus on the middle class, right? तो हमारे 4 मेजर एरियाज हैं जहां पर हम अपना फोकस कर रहे हैं. Now we will see some of the deficits. कुछ हम ट्रेंड्स देखेंगे, और देखिए यहाँ पे जो डेटा हमें मिला है, if you see this data, we have the data of 2020-23 financial year 2022-23, which is the actual data. Actual data का मतलब है कि now we have the exact amount which has been spent or which has been received. तो exact amount हमने जो receive हुआ या spend हुआ, वो पूरा amount हमारे यहाँ पर available है. तो actual का मतलब है कि ये data हमारा accounting के basis पर है, यहाँ पर estimates नहीं है, ये हमारा actual data है. नेक्स्ट 2023 बजट एस्टिमेट. बजट एस्टिमेट का मतलब होता है कि जो हमारा बजट 23-24 का आया था इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, इन दैट बजट व्हाट फिगर दे प्रोवाइडेड.
तो उस समय पे उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, बजट प्रेजेंट करते वक्त मिनिस्टर ने क्या एस्टिमेट किया था, दैट इज द बजट एस्टिमेट. थर्ड इज रिवाइज्ड एस्टिमेट. रिवाइज्ड एस्टिमेट इंडिकेट दैट नाउ दैट द ईयर इज कंप्लीट. अब हमें पता है कि 2023-24 31 मार्च 2024 को कंप्लीट हो चुका है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम हाउ वी सी दिस बजट फिगर्स, क्या वो बजट फिगर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं? क्योंकि हमने जो एस्टिमेट किए थे, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो हमेशा कामयाब नहीं होते हैं, तो हमारे जो एक्चुअल्स होते हैं थोड़ा डिफर करते हैं, मिड ऑफ द ईयर में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं. सो आर व्हाट आर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, दीज आर कवर्ड हियर. And last is budget estimate. Budget estimate of 2024-25, that is a current budget. जो बजट अभी जुलाई 2024 में प्रेजेंट हुआ है, in this budget what are the figures, what are the estimates. Okay, तो ये चार चीजें आपको काफी सारे डायग्राम्स में मिलेंगी, तो आप इस चीज को इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. Now coming to the fiscal deficit. Fiscal deficit basically represent the total borrowings. ये सबसे मेजर इंडिकेटर है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन का, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि सरकार ने कितना लोन लिया मल्टीपल सोर्सेज से, डोमेस्टिकली, एक्सटर्नली, पब्लिक से, आरबीआई से. ठीक है, तो ये अगर हम देखें 2023 विच वाज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, तो इसके बाद से अगर हम देखें तो देयर इज अ डाउनफॉल, इट इज अ गुड कंडीशन. तो बेसिकली 23-24 का जो एस्टिमेट था 5.8 रिवाइज एस्टिमेट, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमने इसको किया है 4.9, विच इज गुड इंडिकेटर. ये इंडिकेट करता है कि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर अग्रसर हैं. फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं और अपने लोन को भी कम कर रहे हैं. राइट. नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट इज basically indicating that how much loan we have to take for our revenue expenditure. That means the shortage of revenue receipt as compared to revenue expenditure. So revenue deficit ideally should be very very less. It should be around 0.5%, और अगर हम देखेंगे FRBM एक्ट तो वो कहते हैं कि एकदम जीरो होना चाहिए. तो रेवेन्यू डेफिसिट इफ यू सी 4% हाईएस्ट 22-23 में था. नाउ 1.8 वी आर एस्टिमेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, विच इज वेरी कंफर्टेबल. तो हम कह सकते हैं कि डेफिसिट के मामले में सरकार बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और सरकार फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखी हुई है. और अगर ये कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा? इफ दिस इज नॉट इन कंट्रोल देन व्हाट विल हैपन? नंबर 1, इन्फ्लेशन होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू बोरो मोर मनी एंड इट विल गिव द मनी टू द पीपल एंड इट विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन. दूसरा नुकसान क्या होगा? The government will have to repay in the future. It will increase the tax burden in the future. Third impact क्या होगा? It will crowd out the private sector. Private sector के पास पैसा नहीं बचेगा, right? लोन लेने के लिए, क्योंकि सरकार ने लोन ले लिया है. तो ये मेजर इम्पैक्ट होंगे अगर हम फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते हैं. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. सरकार ये जो डेफिसिट कम कर रही है वो इसलिए कम कर रही है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेफिसिट इज वेरी हाई. एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, out of that we reduce the interest obligation, because interest obligation is the automatic payment which has to be done because of the past obligations, and it do not represent the performance of the present year. तो present year की performance को अगर हमें काउंट करना है तो फिस्कल डेफिसिट से भी बेटर होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है कि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर की वजह से जो हमें लोन लेना पड़ा है. ठीक है. और नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मींस द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स व्हिच आर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स. तो स्टेट्स को, पीएसयूज को जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट दी उसको माइनस करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट से. सो इट विल इंडिकेट द एक्चुअल पिक्चर, रियल पिक्चर, दैट हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर दैट वी आर डूइंग इन द रेवेन्यू अकाउंट आउट ऑफ द बोरोइंग. रेवेन्यू अकाउंट में जो हम खर्चा कर रहे हैं बोरोइंग से, एक्चुअली उसका रेक्यूरेट जो रिफ्लेक्शन होता है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से होता है. ठीक है. तो एक सिंपल आपको ये नोटिस करना है कि ऑल दीज फिगर्स आर कमिंग डाउन. प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है सर? तो प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू इन द लास्ट 5 years फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कंसिस्टेंटली कमिंग डाउन. तो आंसर इज यस, राइट. तो ये सारे डेफिसिट ही इनफैक्ट कम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. So basically, if we talk about what are the sources of deficit financing कहाँ से हुआ है? तो primarily it has been from the market borrowing. सबसे ज़्यादा market borrowing से हुआ है. Secondarily, it has been from the securities against small savings. तो जैसे हमने किसान विकास पत्र गवर्नमेंट इशू करती है,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये जो मेजर इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं जो पब्लिक अकाउंट में होते हैं, यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है वो भी हमारे बोरोइंग का ही पार्ट होता है, तो यहाँ से भी हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट आपका मार्केट बोरोइंग हो गया और सेकंड हाईएस्ट आपका सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स हो गया। Now, trends in capex. Capital expenditure is increasing. Capital expenditure means the expenditure which is done on the construction of capital assets. जितना भी हमारी buildings, machines, technology, तो ये जितना भी हमारा कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 years में ऑलमोस्ट वी यूज टू हैव इट एट 8.4%, और इन द करंट बजट वी आर हैविंग 15%, दैट इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया है। तो इट इज़ ए गुड थिंग, ये बहुत ही बड़ी बात है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है, और इसके अलावा ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट विच हैज बीन गिवन टू द स्टेट बाय द सेंटर, और विच हैज बीन गिवन टू द स्टेट पीएसयूज बाय द सेंटर, और विच हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल पीएसयूज बाय द सेंटर। तो जितने भी स्टेट को और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम द कोर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उनको जो भी कैपिटल एसेट्स के लिए हमने ग्रांट दी है वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर के जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स के अंदर अगर हम देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग, तो 11.3, फिर कम हुआ थोड़ा सा, फिर इंक्रीज हुआ, और नेक्स्ट ईयर में अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज होगा। तो टैक्स बेस इंक्रीजिंग इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ से हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। और यहाँ पर हमें एक चीज देखने की बात और भी है कि ग्रोस टैक्स के अंदर वी हैव डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि द रिच पीपल हैव टू पे मोर टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट प्रोग्रेसिव। Here it is not necessary that rich people will pay more taxes, both rich and poor they pay the equal taxes। ठीक है, तो direct tax being higher than indirect tax is good, it is a good indicator, it indicates that there is a equity in the taxation system, taxation system में equity है और ये consistently higher रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस आर हायर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स, द आंसर इज यस, और इज इट गुड और बैड, तो इट इज गुड। ठीक है, रेलवे बजट। अब रेलवे बजट वैसे तो अलग पहले होता था लेकिन अभी कंबाइन हो गया है, और रेलवे बजट में हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है एक चीज, दैट इज ओनली ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कि हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ मनी दैट वी हैव रिसीव्ड, यू नो, as a percentage of the money received, how much percentage we have to spend on the operations. Suppose हमें 100 रुपीज टोटल रेंटल के मिले, फेयर पैसेंजर से या फ्रेट से, ठीक है, तो मालगाड़ी से या पैसेंजर गाड़ी से हमें टोटल 100 रुपीज रिसीव हुए। अब वो 100 रुपीज रिसीव जो हमें हुए उसको ट्रेन को चलाने के लिए हमें कितना खर्चा करना होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। और ट्रेन चलाने का मतलब इट इज नॉट ओनली द ड्राइवर और फ्यूल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रेलवे सिस्टम। रेलवे सिस्टम के सारे एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर रेलवे को 100 रुपये मिलता है तो उसमें से 24-25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 98.22 वो खर्च कर देंगे अपने ऑपरेशंस में। बाकी जो बचेगा तकरीबन 1.78 रुपीज, दैट इज ए सेविंग। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सरप्लस है, और सरप्लस कैन बी यूज्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर द स्टेशन डेवलपमेंट, फॉर द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो है ये कहीं ना कहीं काफी हायर है इंडिया के। तो इंडिया में कंसिस्टेंटली अगर हम देखेंगे तो it is more than 98% in the last few years, तो it is a cause of concern। बाकी चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां पर है। रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू। देखिए सबसे ज्यादा पैसा आता है आपका बोरोइंग से, यानी कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट वाला पोर्शन है, जो आप लोन लेते हैं या जो पब्लिक अकाउंट में पैसा आता है जो हमें वापस करना है बाद में, ये सब मिला करके हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से रिसीव होता है, ठीक है, एज ए सिंगल फिगर हम देखेंगे तो। और इसके अलावा हम देखें तो इनकम टैक्स में अच्छा खासा में पैसा रिसीव होता है 19, यानी कि अगर टोटल 100 रुपीज़ रिसीव हुए सरकार को, टोटल रिसीट की हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला करके, तो उसमें से 19 रुपीज़ इनकम टैक्स के होते हैं और 17 रुपीज़ कॉर्पोरेशन टैक्स के होते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स इंडिकेट
द इनकम टैक्स विच इज पेड बाय द कॉर्पोरेट्स, दैट इज द कंपनीज, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, अगर वो इनकम टैक्स पे करती हैं उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और इनकम टैक्स बेसिकली इंडिकेट्स द नॉन कॉर्पोरेट, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के हमारे हो गया ये डायरेक्ट टैक्स। तो 17 + 19 दैट इज 36 पैसा। तो 36 पैसा हमारा आता है डायरेक्ट टैक्सेस से। और कस्टम्स, इसका मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज ए मेजर डेवलपमेंट। तो ये सब मिलाकर के 18 + 5 + 4 दैट मीन्स 27%, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स 27% है, डायरेक्ट टैक्स 36% है। तो ये बेसिकली हमारा सोर्स ऑफ रिसीट है। अब इसके अलावा अगर हम देखें नॉन टैक्स रिसीट्स, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, तो ये आपका सिर्फ 9 है, और वो काफ़ी सारे यूजर चार्जेस भी होते हैं इसमें। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट दैट इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट, द सेल ऑफ एसेट्स, द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये आपका सिर्फ 1% है, यानी कि ये कोई मेजर पोर्शन नहीं है, सरकार अभी डिसइन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं कर रही है। देन कम्स कि वेयर द मनी गोज, पैसा जा कहाँ रहा है। तो अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारा जा रहा है वो है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलता है उसमें से कुछ शेयर स्टेट को भी देना होता है, तो वो हम बात कर रहे हैं 21% वहाँ पर चला गया आपका। इसके अलावा 19% आपको चला गया इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट इज अ मेजर एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा एडवर्स इम्पैक्ट है कि इंटरेस्ट लेने की वजह से हमें कहीं ना कहीं हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें मेजर जो हमारा एक्सपेंडिचर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में भी हो रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है द स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द सेंटर, विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा खासा है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पोर्शन कम है, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टेट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के स्कीम इंप्लीमेंट करती है वो आपका उसके एक्सपेंडिचर हमारा कम है। डिफेंस 8, वेरी गुड अमाउंट। सब्सिडीज 6%, सब्सिडीज भी काफी अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये हमारी मेजर एक्सपेंडिचर्स यहां पर दिए हुए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रायोरिटीज। तो ऑलरेडी हमने बात की थी कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वहां पर 4 सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, द पुअर, फार्मर, यूथ एंड वुमेन, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एग्रीकल्चर इंडिकेट द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज लार्जली आवर पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 45% इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। और अगर हम पूरा प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो अराउंड 55% इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। सेकेंड मेजर फोकस हमारा है मैन्युफैक्चरिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट एरिया दैट इज द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हैपेंस टू बी द मेजर फोकस। एग्रीकल्चर में हमारा कहाँ पर फोकस है, तो देखिए अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वी हैव टू फोकस ऑन द रिसर्च, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चर में है द पुअर लैंड प्रोडक्टिविटी। और लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है वी नीड गुड सीड्स, राइट। तो बेसिकली हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर challenge to the agriculture and we have to ensure that whatever cultivation we are doing that should be climate proof. So research is major focus. Then another focus is Atmanirbharta, that means self-sufficiency in the oil seeds. So oil seeds and pulses, these are the 2 major items where we are importing, where we are import dependent. तो अगर हमें oil seeds में इंपोर्ट कम करना है, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये जो भी ऑयल सीड्स हैं, अगर हमें यहाँ पर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज एज ए प्रायोरिटी एरिया। तो फॉर दिस पर्पस वी आर डूइंग सम special schemes. For example, we have PM Asha scheme where we are providing some alternative mechanisms to provide the MSP. तो MSP के थ्रू और एक फोकस्ड अप्रोच मिशन के थ्रू हम लोग ऑयल सीड्स पे और पल्सेस पे फोकस कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन पार्शियल सक्सेस. कुछ एरियाज हैं जैसे कि डेयरी सेक्टर वेयर द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बीन सक्सेस. नाउ वी वांट टू अगेन increase the focus on the cooperative movement. So for this purpose, we are talking about national cooperative policy, where the systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector is required, right? तो cooperative sector को हमें promote करना है. आज के समय में अगर हम देखें कुछ major concept जैसे कि FPO, Farmer Producer Organizations, FPC, Farmer Producing Companies, these are some of the major tools through which we can increase the focus on the cooperative sector. Okay. और बताइए कहाँ पे फोकस होना चाहिए. तो देखिए अगर हम अदर एरियाज की बात करें एग्रीकल्चर के अंदर में, तो डेफिनेटली अनदर एरिया इज पेरिशेबल्स. जो भी हमारे पेरिशेबल्स होते हैं वेजिटेबल स्पेशली, तो हम देखते हैं कि जैसे टोमेटो है, ऑनियंस हैं, राइट, पोटैटोज हैं, स्पेशली टोमेटो एंड ऑनियन, द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग because these are regularly used items, number one. Number two, there is a demand supply mismatch because of production issues, because of some hoarding and all. So because of that, we need to focus on the supply chain of the vegetable, कि इनकी production भी अच्छी हो और यहाँ पर हमारा wastage भी ना हो, cold storage facilities भी हो, so that we have the consistent supply, adequate supply, and the prices do not fluctuate too much in the vegetables. Okay, तो vegetable की हमने यहाँ पे बात की, इससे पहले हमने ऑयल सीड्स की बात की थी, राइट, एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज. देखिए अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हाई यील्डिंग वेराइटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को फोकस करना होगा, एंड ऑल्सो horticulture crops, because horticulture will provide us the nutritional security. Already under the green revolution we have been successful in getting the food security. Food security हमें मिल चुकी है, we are a food surplus country, but now we need nutritional security, and for that we are focusing on all these things. जितनी भी ये चीजें हैं हमारी, जैसे horticulture हो गया, vegetable हो गया, और आपका pulses हो गया, ये सारी चीजें एक्चुअली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ही हैं. ठीक है. Natural farming, very important, because we are aware about the adverse impacts of the chemical farming, so we need natural farming. तो हमारी ऑलरेडी एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत कृषि विकास योजना बेसिकली प्रोवाइड्स द सब्सिडी टू द फार्मर्स ऑन द क्लस्टर बेसिस. तो जो भी फार्मर्स ग्रुप ऑफ 50 या उसके आसपास आते हैं तो उनको हम लोग कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं. और स्पेशली अगर हम बात करें तो वी नीड टू प्रोवाइड देम द सपोर्ट इन द ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन, कि जो भी वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो उनको ट्रेनिंग मिले, और जो प्रोड्यूस करेंगे तो उसको सर्टिफिकेशन मिले कि हाँ दीज आइटम्स आर द ऑर्गेनिक, सो दैट दे कैन सेल इन द मार्केट. और उनकी ब्रांडिंग हम करें, so that the people who are aware about the benefit of organic products, they can purchase it, and we can even export this. Okay, so basically 1 crore farmers across the country will be initiated, और ये हमें फोकस करना है सर्टिफिकेशन पे, ब्रांडिंग पे, और हम लोग कुछ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी इस्टेब्लिश करेंगे. ओके, तो देखिए आज हमारे कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छा खासा फोकस है. ठीक है, और इस फोकस को हमने कंटिन्यू किया है थ्रू दिस बजट. Next is shrimp production and export. Shrimp, basically they are focused under pink revolution. So these are very important for the exports. ठीक है, तो exports के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए we are providing the financing through NABARD. तो देखिए pink revolution पे फिर से इन्होंने फोकस किया है. 2013 में क्वेश्चन आया था pink revolution पे. Again you can focus on the pink revolution. Pink revolution पे फिर से क्वेश्चन आ सकता है. Next is digital public infrastructure, DPI. DPI basically indicates a combination of three tools, three digital tools, that is Aadhaar, UPI, and payment aggregator. So basically, Government of India has brought a set of tools so that we can revolutionize the digital ecosystem of the India. तो उसी के तहत हमने आधार जो कि आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, यूपीआई जो कि स्मॉल पेमेंट
के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और पेमेंट एग्रीगेटर विच विल हेल्प इन डाटा शेयरिंग। ये तीनों चीजों को मिला करके हमारा बनता है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम एक नाम से और भी पुकारते हैं इंडिया स्टैक्स। इसको हम इंडिया स्टैक्स भी कहते हैं। राइट तो बेसिकली इन द एग्रीकल्चर ऑल्सो वी नीड टू इंक्लूड दिस। अब आपका GS3 में एक टॉपिक है ई टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, तो यहां पर ये आपका वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। ई टेक्नोलॉजी में जाकर के आप अपनी नोट्स में इस चीज को ऐड कर लेंगे। ओके तो यहां पर हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, DPI फॉर द कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड इन द नेक्स्ट 3 years। तो देखिए लैंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द रूरल एरिया वी आर प्रोवाइडिंग द यूनिक लैंड पार्सल ID नंबर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लैंड है उसके लिए भी हम आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, भू आधार भी इसको कहते हैं। सेकेंड इज डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि देखिए क्रॉप सर्वे क्यों जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड द राइट इंश्योरेंस। तो एक तो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, फिर हमें सर्वे के अकॉर्डिंगली जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न निकल के आएगा उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको फोकस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज इश्यूएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड आर द रुपे कार्ड विच आर इशूड बाय द various banks, various agencies on behalf of the government to the farmers। तो यहाँ पर farmers को हम इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में, यानी कि डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट के साथ में हम क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, और ये जन समर्थ के बेसिस पे दिया जाएगा। जन समर्थ इज ए पोर्टल, ये एक पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है, एक वेबसाइट है। इन दिस वेबसाइट ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स इन ऑल द वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो MSME के लिए हो, स्टार्टअप के लिए हो, बड़ी कंपनी के लिए हो, इंडिविजुअल्स के लिए हो, SCs के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, तो जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज के संबंधित हमारी स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स वहाँ पर इंटीग्रेट की हुई हैं जन समर्थ पोर्टल पे, और किसान क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड को इशू करेंगे, यानी कि हम एग्रीकल्चर फाइनेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, नाउ सो आफ्टर द एग्रीकल्चर नेक्स्ट फोकस एरिया इज एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। देखिए सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि हमें अपने यंग पॉपुलेशन को एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, और उसके लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि वो फॉर्मल सेक्टर में आएँ या फॉर्मल जॉब्स करें, सो दैट दे हैव द सोशल सिक्योरिटी। अपने रिटायरमेंट के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे उनके पास सफिशिएंट फंड हो। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसी जॉब करें जहाँ पर उनको प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी मिले। तो प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के पैसा जमा कराते हैं, और ये जो पैसा होता है ये EPFO में जमा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा होता है, और ये पैसा धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के और रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट से पहले अगर एम्प्लॉय चाहता है जॉब छोड़ के जाना चाहता है तो उस समय पे भी पैसा उनको मिल सकता है। तो ये एक तरह का बल्क फंड हो जाता है जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पर सरकार ने इंसेंटिवाइज किया है कि अगर आप EPFO में रजिस्टर्ड हो तो एम्प्लॉय को भी कुछ बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयर को भी कुछ बेनिफिट होगा। ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे EPFO के अंदर रजिस्ट्रेशंस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 स्कीम्स हैं, इसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा मेजर अम्ब्रेला टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, प्रीवियसली वी हैव बीन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो उनको हमने इंसेंटिवाइज किया क्योंकि वो प्रोडक्शन बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा रही है और जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन वहां पर जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमें इस समय जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है। तो हमने अब ये किया कि अगर जो कंपनीज हैं या नॉन कंपनीज भी हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो EPFO में रजिस्टर्ड हैं, वो अगर जॉब प्रोवाइड करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को या EPFO में उनको लेके आते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव देंगे, ELI। तो एक मेजर शिफ्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, फ्रॉम PLI टू ELI। तो ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है बजट में इस बार, और यहाँ पर 3 स्कीम्स हमारी हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए स्कीम A है, राइट। तो जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, फर्स्ट टाइमर्स जो भी फॉर्मल सेक्टर में लोग ज्वाइन करेंगे, इन लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट्स
में अप टू 15,000 रुपीज दिया जाएगा। ये एम्प्लॉय के पास डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा। ओके और इनकी सैलरी अप टू 1 लाख रुपीज होनी चाहिए पर मंथ, और इनको कम से कम 1 साल काम करना होगा एक सिंगल एम्प्लॉयर के अंडर में। तो जहां पर इन्होंने फर्स्ट एम्प्लॉय के पास ज्वाइन किया, इनकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए पर महीने से कम है, और इनको अगर कम से कम 1 साल इन्होंने एक एम्प्लॉयर के पास में कंप्लीट किया है, तब जाकर के इनको 15,000 रुपीज इनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे इंस्टॉलमेंट में। तो ये एक मेजर पॉलिसी है जहां से हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं एक तरह से फॉर्मलाइजेशन को, ठीक है, कि भाई आप ईपीएफओ में रजिस्टर कराइए, सरकार आपको पैसे देगी, एम्प्लॉय को पैसे देगी। इसके अलावा स्कीम बी जो है, स्कीम बी ये भी आपका फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज से लिंक है, लेकिन यहां पर क्या है कि हम यहां पर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में हम इनको सपोर्ट करेंगे कि ये लोग अगर ईपीएफओ में रजिस्टर कराते हैं तो इनका जो ईपीएफओ का शेयर है वो कुछ शेयर सरकार अपने पास से जमा करेगी। और थर्ड आपका आता है स्कीम सी, जहां पर एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट किया जाएगा। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि जो सरकार है वो एम्प्लॉयर की जगह पे 3,000 रुपीज पर मंथ 2 साल के लिए जितने भी न्यू हायर्स हैं उनको गवर्नमेंट अपनी जेब से जमा करेगी। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप लोगों को जॉब दीजिए और उनको ईपीएफओ में लेके आइए। अगर वो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं आपके यहाँ पे तो ईपीएफओ में लेके आइए, उनको फॉर्मलाइज कीजिए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। तो ये 3 मेजर स्कीम्स यहाँ पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो एज वी आर सेइंग कि वी नीड टू प्रोवाइड फोकस ऑन द वुमेन, ठीक है। तो हमने यूथ पे फोकस किया, जो फर्स्ट टाइमर्स वो सारे यूथ ही होंगे डेफिनेटली, और यूथ के साथ साथ में हम वुमेन पे भी फोकस कर रहे हैं। फैसिलिटेटिंग हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का, जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और देखिए इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज वेरी लेस। अगर हम बात करें फरवरी 2024 डेटा की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36%, बट इन द अदर कंट्रीज इट इज मोर देन 50%, और 45% तो बहुत ही जनरल बात है। इंडिया में अगर हमें वर्किंग वुमेन को रेशियो को इंक्रीज करना है तो हमें उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी होगी। सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग द हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग द रैश फैसिलिटीज। तो इन थ्रू द रैश फैसिलिटीज they can bring the children to the office, they can keep them safely, and they can work and they can focus on the career. And loans will also be given up to 7.5 lakh with the guarantee from the government promoted fund. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक फंड से और जो स्टूडेंट्स हैं उनको 7.5 लाख रुपीस तक का लोन देगी ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इज स्किलिंग। तो 2014 के बाद में हमने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई थी, तकरीबन 2017-18 तक काफ़ी अच्छा फोकस रहा था, लेकिन सेकेंड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी देयर वाज नॉट मच फोकस ऑन द स्किलिंग। ये स्किलिंग पे फोकस वापस से अब आया है, ठीक है। तो जो हमारी नितिन सिंघानिया सर की बुक होती है वहाँ पर जो स्किलिंग चैप्टर है उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में आपका स्किल डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अब इस बार नई चीज़ें क्या आई हैं, हमने 20 लाख यूथ को स्किल करना है, और वी हैव टू बेसिकली अपग्रेड द ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, विच आर द स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। ये हमारे फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ पर हम हब एंड स्पोक मॉडल में डेवलप करेंगे। हब एंड स्पोक का मतलब हुआ कि हम चूज करेंगे एक रीजन को, एक पार्टिकुलर रीजन को, उसमें कुछ स्मॉल सेंटर्स को डेवलप करेंगे। तो हब एक होगा और हब के अंदर स्पोक्स होंगे छोटी छोटी सी, जो वहां से कनेक्टेड होंगी। तो इस तरह से हम इनको आइडियाज को डेवलप करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ऑल्सो वी विल फोकस ऑन द कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वी हैव द यंग पीपल बट दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंगली वो स्किल्ड नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली स्किल्ड हो, ठीक है। देन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, और वो भी अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस करते हैं। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो 10 लाख रुपीस तक आपको लोन मिलेगा, और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला है ई-वाउचर्स, जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन भी होगा। सबवेंशन का मतलब होता है एक तरह का डिस्काउंट। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ डिस्काउंट सपोज 8% है तो सबवेंशन 3% होगा, यानी कि 8% नॉर्मल हो गया, 3% डिस्काउंट हो गया, तो फाइनली आपका 8 - 3 = 5%। तो 5% आपका चार्जेबल इंटरेस्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, राइट। तो एक बहुत बड़ी थीम सरकार ने निकाली है पूर्वोदय। पूर्वोदय यानी कि ईस्टर्न रीजन पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोalition कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश जो रूलिंग पार्टीज हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनका काफ़ी एक मेजर सपोर्ट है करंट गवर्नमेंट को। तो इसके चलते हुए भी बिहार और आंध्र प्रदेश को फोकस किया गया है। ओडिशा जो है वहाँ पर जो करंट रूलिंग पार्टी है सेंटर में बीजेपी, उनकी सरकार फर्स्ट टाइम आई है काफ़ी समय के बाद में। और झारखंड एक उसी रीजन में उस बेल्ट में पड़ता है। तो इनको मिलाकर के हमने एक रीजनल फोकस किया है जिसको हमने नाम दिया है पूर्वोदय, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिहार अगर हम देखें और आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये हमारे 3 मेजर स्टेट थे। झारखंड और वेस्ट बंगाल क्योंकि वो उसी रीजन में आते हैं, और एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट्स ऑन पार्टिकुलर बेसिस। तो पूर्वोदय को हमने फोकस किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूर्वोदय में हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे बिहार में आपके एक्सप्रेसवेज हो गए, फ्लड कंट्रोल के लिए हमारे कुछ फोकस हैं, तो वो हम एरिया देखेंगे। तो बेसिकली बिहार और आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल फोकस दिया है। आंध्र प्रदेश में भी अमरावती के लिए हमने फंड दिया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे फोकस किया जाएगा, ओके। देन प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजाति मीन्स ट्राइबल। सो ट्राइबल के लिए हमने जो उनके विलेजेस हैं, उन्नत ग्राम मीन्स द प्रोस्पर विलेजेस, समृद्ध ग्राम। तो उनके जो गांव हैं, जो ट्राइबल्स के गांव हैं, उन पे हमें फोकस करना है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जहां पर उनकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए जितने भी ये कोई नई स्कीम आती है तो उसके बारे में जो डिटेलिंग होती है वो बजट के बाद धीरे धीरे आती है। अभी वो स्कीम का नाम अनाउंस कर देते हैं, उसका जो पर्पस है वो अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग आती है वो बाद में आती है, ठीक है। देन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन वी विल ऑल्सो एस्टैब्लिश द न्यू ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट का जो पेमेंट बैंक है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का पेमेंट बैंक है, उनके लिए, उनके नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए उनकी ब्रांचेस को ओपन करेंगे, सो दैट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन वी हैव द फाइनेंशियल इंक्लूजन एट बिगर स्केल, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन चैप्टर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और इसको हम रीजनल डेवलपमेंट में भी फोकस कर सकते हैं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देन वी हैव आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए जैसे मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश को भी हमने स्पेशली फोकस किया है, और यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है। कुछ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि पेंडिंग था उसको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट, और कुछ वाटर, पावर, रेलवे और अदर प्रोजेक्ट ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओरकवाल नोड ऑन द हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो देखिए मेरा सजेशन आपको ये है कि एक बार आप अपने एटलस को, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में बजट के अंदर काफ़ी मेंशन है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी एमएसएमईज में स्पेशल फोकस किया है। देखिए जो स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में, उनको टेक्निकली हम कहते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या माइक्रो या स्मॉल हैं, ये एंटरप्राइजेस के कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है और इनको जॉब क्रिएशन कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है। तो हम एमएसएमई पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर हमें इक्वालिटी प्रमोट करनी है कंट्री में, इकोनॉमिक इक्वालिटी, और अगर हमें एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सभी जगह पे फोकस करना है, तो एमएसएमईज हैपन टू बी द बेस्ट वे टू फोकस। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने एमएसएमईज के लिए की हैं, और एमएसएमई का सेपरेट चैप्टर है नितिन सिंघानिया सर की बुक में, उस चैप्टर में जाकर के आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो एमएसएमई का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी स्किल का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बजट के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इस बार। सो देयर इज ए क्रेडिट गारंटी स्कीम
दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गारंटी देगी कि अगर आप बैंक हैं और आप एमएसएमई को लोन देते हैं और एमएसएमई डिफॉल्ट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी, गारंटी देती है, ठीक है। एनहांस्ड स्कोप फॉर द मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन टीआरईडीएस। देखिए टीआरईडीएस क्या है? टीआरईडीएस इज ए ट्रेड रिसेवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। बेसिकली जो बायर और सेलर होते हैं गुड्स के, अब जो सेलर होता है उन्होंने गुड्स सेल कर दिया है लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं की। बायर कहता है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन सेलर को पैसे की जरूरत है। तो हमने बोला कि आप ऐसा है एक सिस्टम पे जाइए, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, जहां पर जो बायर है वो अप्रूव करेगा सेलर के इनवॉइस को। सेलर ने वहां पर इनवॉइस अपलोड किया कि हमने ये गुड्स उनको सेल किया, इसका एविडेंस ये है। बायर उसको अप्रूव करेगा कि हाँ हमने ये गुड्स लिए हैं और हम इसकी पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे। अब मल्टीपल बैंक्स, मल्टीपल फाइनेंशियल एजेंसीज वहां पर आएंगी, वो भी रजिस्टर करेंगी और वो बिड करेंगे, वो ऑफर करेंगे कि जो सेलर है उनको अगर पैसा चाहिए तो हमसे पैसा ले सकते हैं, और वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी उनकी तरफ से बेस्ट पॉसिबल रेट होगा उस रेट को ऑफर करेंगे। अब जो ये सेलर है उनको जो भी फैसिलिटी अप्रोप्रिएट लगती है, जिस भी बैंक से उनको लगता है कि इस बैंक से मुझे लोन ले लेना चाहिए या फंडिंग ले लेनी चाहिए, उस बैंक से या उस फाइनेंशियल एजेंसी से सेलर लोन लेकर के 3 महीने बाद जो पेमेंट बायर से आएगी वो बायर की पेमेंट डायरेक्टली बैंकिंग या फाइनेंशियल एजेंसी के पास जमा हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डे टू डे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर एडिक्वेटली फुलफिल होगी, ठीक है। न्यू असेसमेंट मॉडल ऑफ फॉर एमएसएमई क्रेडिट। तो एमएसएमई को जो लोन मिलता है उसके लिए न्यू असेसमेंट मॉडल की बात की जा रही है, यानी कि वी विल प्रोवाइड देम द लोन ऑन द इजियर टर्म्स, राइट। नेक्स्ट मुद्रा लोन। मुद्रा लोन अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो मुद्रा लोन में एक थर्ड कैटेगरी होती है तरुण कैटेगरी। तो यहाँ पर हमारी 3 कैटेगरी होती हैं और जिसमें से थर्ड कैटेगरी तरुण कैटेगरी होती है। पहले यहाँ पर 10 लाख रुपीज तक की लिमिट थी, अभी ये लिमिट होकर के 20 लाख रुपीज हो गई है, ठीक है। तो दैट मीन्स नाउ वी आर प्रोवाइडिंग मोर अमाउंट ऑफ लोन टू द एमएसएमईज। क्रेडिट सपोर्ट टू द एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। जो भी एमएसएमईज स्ट्रेस से गुजर रही हैं उनके लिए क्रेडिट मिलेगा, उनके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा क्रेडिट में। एमएसएमई यूनिट फॉर द फूड इरेडिएशन quality and safety testing. Basically, in India, the food safety happens to be a major concern. This is also an issue in the export of Indian products. So we are promoting the MSMEs to work in the areas so that the food safety can be increased, right? Then 12 industrial parks on the plug and play model. तो हम इंडस्ट्रियल पार्क्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि 2011 की हमारी पॉलिसी थी, नेशनल न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स। सो एनएमआईजेड में हमने क्या किया था कि 5000 हेक्टेयर जमीन लेते थे स्टेट गवर्नमेंट से और उसको प्लग एंड प्ले मॉडल पे डेवलप करते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब ये हुआ कि हमने पूरी बिल्डिंग डेवलप कर दी, सारी फैसिलिटीज वहां पर दे दी और जो बिजनेसमैन है वो आएंगे और अपने मशीन को प्लग करेंगे और उसको प्ले करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। तो उस सेम मॉडल पे हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी वुमेन वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड करने। उसी तरह से हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है या अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, और इस केस में क्या होता है, जो हमारी मिडिल क्लास हाई क्लास के जो लोग होते हैं, दे आर हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन परचेज द houses or they can even take it on the rental. But the people who are at the lower level, blue collar workers, जिनकी इनकम कम होती है, उनके पास रहने के इंतजाम नहीं होते, तो they are in the very bad condition, और because of absence of living facilities they are not able to do the job. तो हम चाहते हैं कि इनके लिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इनके लिए हम कुछ रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करें कि जहाँ पर एक सस्ते तरीके से डोरमेट्री टाइप एकोमोडेशन मिलेगी। डोरमेट्री का मतलब होता है कि देर आर लार्ज हॉल्स, और बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और वहाँ पर सपोज 50 या 100 बेड्स लगे हुए होते हैं और सबकी अलमीरा होती हैं सेपरेटली। तो ये सेपरेट इनको रूम्स नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े हॉल में इनको रुकना होता है, इसको हम डोमेट्री कहते हैं। और ये पीपीपी मोड में होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेकर के इनको बिल्ड करेगी, और विद द वीजीएफ सपोर्ट। वीजीएफ मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब हुआ कि जो भी यहाँ पर
फंडिंग होगी वो प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि ये उनके लिए वायबल नहीं है, दे कैन नॉट अरेंज द फाइनेंस और इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, तो सरकार अपने पास से इसको कंपेंसेट करेगी। तो पूरा पैसा सरकार नहीं देगी, लेकिन जो गैप है उसको फंडिंग करेगी, इसलिए हम कहते हैं उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ये काफी बड़ी प्रॉमिसिंग स्कीम है, क्योंकि यहां पे सरकार ने बोला है कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको 5 साल में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप करानी होगी। ये कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं रिकमेंडेटरी हम कह सकते हैं, और ये अच्छा भी है बिकॉज यहाँ पर लर्निंग वाइल अर्निंग होगा, मेंबर्स द यूथ दे विल गेट 5,000 रुपीज पर मंथ, और उनको बेसिकली एक असिस्टेंस भी मिलेगी CSR फंड से 6,000 रुपीज की, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ कंडीशंस यहाँ पे सरकार ने रखी है। सरकार ने बोला है कि इनको जो भी एम्प्लॉइज यहाँ पर ज्वाइन करेंगे एज एन इंटर्न, इनको फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी सरकार की तरफ से, जिसकी कॉस्ट सरकार गवर्नमेंट नहीं देगी, कंपनीज ही इसको फुलफिल करेंगी, और कंपनीज जो है अपने CSR फंड का 10% पैसा वो इनके ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो जो CSR का 10% पैसा होता है वो पैसा ये अपनी ट्रेनिंग वगैरह करा सकते हैं इंटर्न्स को, और साथ साथ में इनको 5,000 रुपीज पर मंथ में इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव है, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनको हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम एक ऑब्लिगेशन भी डाल रहे हैं कि भाई हमारे यूथ को आप ट्रेन कीजिए, एंगेज कीजिए। जब ये लोग जाकर के वहाँ पर 1 साल काम करेंगे, सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन और एक इकोनॉमिक लॉजिक भी बनेगा कि भाई इनको काम पे वहाँ पर परमानेंट या एक सफिशिएंट टाइम के लिए जॉब दी जाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग बूस्टर फॉर द जॉब क्रिएशन एज वेल एज डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल्स। तो स्किल डेवलपमेंट में भी ये काम का है, यूथ फोकस भी है। कहीं ना कहीं जो हमारे गैप होता है कि इंडस्ट्री के पास जो ज़रूरत है और यूथ के पास जो स्किल्स हैं, वहाँ पर जो गैप होता है वो भी यहाँ पर फुलफिल होगा। तो एक ब्रिज की तरह काम करेगा, एक ट्रांजिशन की तरह काम करेगा, और मुझे लगता है कि ये चीज़ और बढ़नी चाहिए, और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? द मिनरल्स विच आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है यानी कि दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी विच आर यूज्ड इन द सोलर सेल्स, इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑल्सो, इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियर, इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेस, राइट। तो आज के समय में हम बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हमें स्टोरेज बैटरीज चाहिए, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए। तो ये मिनरल्स कौन कौन से हैं? जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, और अदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारी जो चिप्स होती हैं उसको बनाने के लिए हमें चाहिए। तो बहुत सारे इस तरह के कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, लिथियम, ठीक है, ये सारे अराउंड 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। प्लस वी आर नॉट हैविंग मच ऑफ द प्रोग्रेस द प्रोडक्शन इन इंडिया। तो हम चाहते नहीं है कि हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हों बहुत ज्यादा समय के लिए। अभी हम डिपेंडेंट हैं तो रिस्क ऑफ सप्लाई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का रिस्क है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम इंडिया में प्रोड्यूस करें, इंडिया में हम बाय करके लाएं, यहाँ पे वैल्यू एड करें, और थर्डली बाहर जाकर के ओवरसीज एरियाज में हम अपनी खुद की माइंस वहाँ पर बाय करें और वहाँ से हम सोर्सिंग करें। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक कंटेंट फॉर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स, राइट। Then strengthening of the tribunal and appellate tribunal to speed up the insolvency resolution. Basically 2016 में insolvency and bankruptcy code लाया गया था, जहाँ पर जो कंपनीज स्ट्रगल करती हैं फाइनेंशियली, जो लोन वगैरह लेकर के नहीं वापस दे पाती हैं, तो उनको इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर हमने और स्ट्रॉन्ग करने हैं। लेबर रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमें फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे, फोकस करना है यूथ पे, फोकस करना है वुमेन पे, पुअर पे। तो लेबर एरिया एक ऐसा एरिया है जो इन सारी चीजों को एक साथ हिट करता है। तो लेबर रिफॉर्म्स में हम क्या कर रहे हैं? एक ई श्रम पोर्टल है जहां पर जितने भी हमारे लेबर रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब कंप्लीट होती हैं। तो इसको हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है
which will connect the job seekers with the employers and the skill providers. तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पे ला करके सारे स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करते हैं ई श्रम पोर्टल पे. ये हमारा फोकस है इन दिस बजट. ये हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है. श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल्स टू बी रिवैम्प्ड टू एनहांस ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर द इंडस्ट्री एंड ट्रेड. तो बेसिकली देखिए, सबसे मेन चीज है ईज. जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, वो चाहते हैं कि वो सारे लेबर लॉज को कंप्लाई करें, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि इट इज नॉट इजी. तो उनके लिए ईज डेवलप हो, ये हम चाहते हैं. और इसके बाद अब टैक्स रिलीफ की बात भी आती है, इसको हम आगे जाके थोड़ा डील करेंगे. नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स. नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देखिए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में हमें टेक्नोलॉजी का एक बेस बना करके चलना है. सो वी हैव टू फोकस मोर अपॉन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की बात की गई है. देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वी हैव फोकस ऑन जन विश्वास बिल 2.0. तो कहीं ना कहीं हम बिजनेसेस के लिए कुछ इजी करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि 1991 के बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ ट्रेड हो. स्टेट्स टू बी इंसेंटिवाइज टू इंप्लीमेंट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान एंड डिजिटाइजेशन. तो देखिए, स्टेट्स के बिना हम कुछ कर नहीं सकते. तो स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना होगा. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के थ्रू ही हम इंडिया में सक्सेस ला सकते हैं. तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को फोकस किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फोकस किया जा रहा है. Then sectoral database for improving data governance, very important. Data is a very important asset. Data is equal to oil. तो डेटा को मैनेज करना, डेटा को गवर्न करना, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ऑथेंटिसिटी, सेफ्टी, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, उसके लिए हम डेटा गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं, राइट. एंड कमिटेड टू रिव्यू द एनपीएस टू इवॉल्व द सॉल्यूशन विद एड्रेसेस which addresses new relevant issues while maintaining the fiscal prudence. देखिए, सरकार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी जहां पर सरकार का कंट्रीब्यूशन भी होता था, और न्यू पेंशन स्कीम है जहां पर सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है या है ही नहीं. तो अब काफी डिमांड उठी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लिया जाए. तो सरकार ने बोला है कि हम एनपीएस के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे और उसके लिए हम कमेटी सेटअप कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द पीपल. Especially this budget shows the accommodation of various interest, various demands of the people, right? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जनजातीय वाला. एनपीएस फॉर द माइनर्स, जिसको हमने कहा है एनपीएस वात्सल्य. तो देखिए, ऑलरेडी हमारे पास एनपीएस स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, विच इज अवेलेबल टू एवरीवन, जिसमें सभी लोग एनरोल कर सकते हैं. और साथ साथ में हमने बोला है कि जो माइनर्स हैं अप टू 18 ईयर्स, दे कैन ऑल्सो एनरोल. और पहले उनके लिए अकाउंट खुलेगा एनपीएस वात्सल्य, और जब वो एडल्ट बन जाएंगे तो सेम अकाउंट माइग्रेट होकर के एनपीएस नॉर्मल बन जाएगा. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर स्कीम फॉर द माइनर्स. कहीं ना कहीं इट विल प्रमोट द हैबिट ऑफ सिक्योरिटी सेविंग्स बाय द चिल्ड्रन ऑल्सो. अर्बन डेवलपमेंट में, इन द अर्बन डेवलपमेंट, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है. तो देखिए, वुमेन के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा वुमेन पे फोकस है और हम चाहते हैं कि वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टीज हों. सेकंड इज स्ट्रीट मार्केट. तो हम लोग वीकली हार्ट्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड हब्स की बात कर रहे हैं, सो दैट देयर इज ए जॉब जनरेशन फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स. तो ये पुअर पे फोकस हो गया, ठीक है. देन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं टीओडी. तो देखिए, टीओडी क्या होता है? जैसे देयर इज ए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमने एक सेंटर पॉइंट की तरह रखा, एंड अराउंड दैट एरिया वी आर डेवलपिंग द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, वी आर डेवलपिंग द स्मॉल मार्केट्स. तो उसका पर्पस ये है कि बिकॉज पीपल आर प्राइमरली विजिटिंग दिस एरियाज रेगुलरली, तो उसी के आसपास अगर मार्केट होंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा. तो मेजर रेलवे स्टेशंस, मेजर रैपिड रेल स्टेशंस, मेजर बस टर्मिनल्स,
उनके आसपास में वॉकेबल पाथ्स बनाए जाएंगे जहां पर व्हीकल्स को लाना अलाउड नहीं होगा और यहाँ पर लोग आकर के अपना शॉपिंग करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड मार्केट डेवलप होगा। तो दिस इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वाटर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जैसे ही, स्पेशली दिल्ली वगैरह में, जैसे ही बारिश आती है, ट्रेनिंग सीजन होता है, तो सीवरेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी फोकस करें ताकि सीवरेज फैसिलिटीज हमारी अच्छे से चल सकें, और हम जहाँ पर भी हमारे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वाटर लॉगिंग एटसेट्रा, उसको भी रिजॉल्व करें। तो अर्बन एरियाज में हमारे ये भी एक स्पेशल एरिया है। हाउसिंग नीड के लिए पीएम आवास योजना पे फोकस करना है 2.0। एंड हमने बार बार बात की है रेंटल हाउसिंग मार्केट, तो यहाँ पर भी अगेन हम कह रहे हैं कि रेंटल हाउसिंग मार्केट को हमें डेवलप करना होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में रेंटल हाउसिंग मार्केट में काफ़ी इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? तो बेसिकली पीपल आर नॉट रेडी टू गिव द प्रॉपर्टी ऑन द रेंट बिकॉज दे फियर दैट द tenant will occupy it. Secondly, there is a very high amount of rent because there is a shortage of properties to be rented. तो कहीं ना कहीं एक तरफ वैकेंट प्रॉपर्टी पड़ी हुई होती है क्योंकि ऑनर्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टीज है उनके रेंटल बहुत हाई है और उधर माइग्रेशन बहुत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि रेंटल एज ए सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो कि लोग घर खरीदे बिना रेंट पे रह सकें, सस्ते रेंट पे रह सकें, क्योंकि इंडिया में जो रेंटल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, इंडिया में जो हाउसिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, मकान बहुत महंगे हैं एज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंजन। तो हम लोग अभी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, जहां पर हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं और इनको डेवलप करेंगे हम लोग, राइट। पम्प्ड स्टोरेज एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए हम अगेन फोकस कर रहे हैं बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ वी हैव द गुड स्टोरेज फैसिलिटी। AUSC, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, दैट मीन्स विच आर वेरी एडवांस्ड प्लांट, तो इसको भी हम थर्मल प्लांट को भी फोकस कर रहे हैं बिकॉज दीज आर मोर एफिशिएंट, दे विल यूज लेस अमाउंट ऑफ इनपुट लाइक कोल एंड दे विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी ऑडिट, सो स्पेशली फॉर द MSME, ठीक है, उनकी एनर्जी ऑडिट कराएंगे कि भाई वो किस तरह की एनर्जी यूज कर रहे हैं और उनको रिन्यूएबल एनर्जी में माइग्रेट करेंगे। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स, नेक्स्ट फेज एक्सपेंड्स टू 100 क्लस्टर्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट का मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी ऑडिट कराएंगे। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जहां पर फ्री में हम इनको 300 यूनिट्स तक की हम इनको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मॉडल रहेगा दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम सब्सिडी एंड will provide the solar panels to the household which they will use, and they will also use the concept of net metering. तो this is one of the very important development और इस पर प्रोग्रेस चल रहा है। up to 300 units every month they will be able to produce without any major cost. Then investment, तो यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम 3.4% ऑफ GDP फोकस कर रहे हैं और स्टेट्स को हम लोग लोन दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि देखिए स्टेट्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी हमने बात की थी स्टेट्स के थ्रू ही हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, उसी तरह से स्टेट्स के थ्रू ही हम लोग जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देकर के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये दोनों चीजें हमें साथ में लेके चलनी होगी। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको भी हम फर्दर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं रूरल कनेक्टिविटी के लिए, काफ़ी पुरानी स्कीम है, फिर से इसको हम फोकस कर रहे हैं। इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया था कि बिहार में हमारा फोकस रहा है, तो उसी तरह से साथ साथ में जैसे कोशी मैशी इंट्रा स्टेट लिंक हो गया, आसाम, सिक्किम और उत्तराखंड जहाँ पे भी फ्लड की प्रॉब्लम होती है, और हिमाचल में भी। तो हिली एरियाज में नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा यहाँ पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें अगर हम टूरिज्म की, तो टूरिज्म में भी अगर हम देखें अगेन फोकस इज ऑन बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। तो ये जो साइट्स है हमारी, विष्णुपुर टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल, महाबोधि, राजगीर, तो ये साइट्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से।
इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले से हमने बात की है, एग्रीकल्चर में भी R&D की फोकस किया जा रहा है और यहाँ पर भी R&D का फोकस किया जा रहा है। अनुसंधान मीन्स द रिसर्च, ओके। तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और स्पेस सेक्टर में भी हम फोकस कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल लेके आ रहे हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है द पूल ऑफ फंड विच इज बेसिकली गेटिंग द मनी फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टिंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की हमने बात की थी, तो ऑलरेडी इसमें से कई चीजें हमने ऑलरेडी बात भी की हैं, वापस से एक बार देख लेते हैं। भू आधार, भू आधार का मतलब है कि यूनिक आईडी नंबर फॉर द लैंड्स, जितनी भी लैंड्स है सभी के लिए भू आधार होगा। और सर्वे ऑफ मैपिंग होगा, क्योंकि देखिए एक लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन हैज बीन द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज लैंड डिस्प्यूट्स आर वेरी मच, और काफ़ी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, लैंड रेवेन्यू में प्रॉब्लम आती है, तो हमें लैंड रिकॉर्ड्स को अच्छे से मॉडर्नाइज करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हैं। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है, कैडेस्ट्रल मैप्स को डिजिटाइज किया जा रहा है, लैंड रजिस्ट्री बनाई जा रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस किया जा रहा है, टैक्सोनॉमी फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस, एनहांसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर द कैपिटल एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो देखिए क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि उनको हम स्पेसिफिकली क्लासिफाई करके और स्पेशली फोकस करके हम फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं। एफडीआई के लिए एक मेजर इनिशिएटिव लिया है कि हम इंडियन रुपी में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी को भी प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिया से अगर हम एफडीआई करते हैं तो वो रुपी में करें, नॉट इन द फॉरेन करेंसी। ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। एनपीएस वात्सल्य हमने ऑलरेडी बात कर ली है, देन डाटा हमने बात कर ली है, एनपीएस फिर से रिवैम्प हो रहा है वो भी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन डिक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर हमारा सरप्लस में चला गया था, जो कि अच्छी बात थी 2021 में, लेकिन फिर से ये जो है आपका बढ़ा था और अब ये वापस से कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेटर है। और एक चीज आपको याद ये रखनी है कि पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी विच इज रियल, रियल मीन्स एट द कॉन्स्टेंट प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो बेस ईयर 2011-12 को अगर हम लेके चले, उनके प्राइसेस पे जो हमारा ग्रोथ है वो 8.2% रहा है, विच इज़ वेरी गुड, ओके। और अगेन ये फ्लक्चुएटिंग रहा है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा, स्टेडी ग्रोथ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स, पीएमआई मीन्स परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। देन ग्रोस एनपीए इज डिक्रीजिंग, तो ये 2018 में हाईएस्ट था और अभी एक तरह से लोवेस्ट है, 3.5% के आसपास है। इट इंडिकेट्स द सक्सेस ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन द एनपीए। देन फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डिक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अभी अपने रेपो रेट को भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। टैक्सेशन में हमने काफी फोकस किया इस बार, इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करने की बात चल रही है, डायरेक्ट टैक्स कोड को हम लाने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं चीजों को, और टीडीएस को भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। टीडीएस का मतलब जो टैक्स डिडक्शन होता है बाय द सोर्स, लिटिगेशन अपील को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं और टैक्स बेस को डीपन कर रहे हैं। टैक्स बेस का मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर पेइंग द टैक्स एंड द टैक्स स्लैब इन विच दे फॉल। और कस्टम ड्यूटीज में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन्स, मोबाइल, वैल्यू एडिशन हमें फोकस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और मैरिन एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो बस आपको एरियाज याद रखने हैं, यू डोंट हैव टू गो बैक टू द परसेंटेज एंड ऑल। डायरेक्ट टैक्स में कुछ कैपिटल गेन में चेंजेस आए हैं, तो देखिए कैपिटल गेन में जो शॉर्ट टर्म गेन होता है उसका रेट ऑफ टैक्स आपका 20% होगा, फाइनेंशियल एसेट्स का पहले 15% होता था। तो स्टॉक मार्केट में जो शॉर्ट टर्म लॉस प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं उस पर टैक्स आपके बढ़ गया है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म गेन जो होता है वो पहले 10% होता था, अभी 12.5% हो गया, तो यहाँ पर भी आपका इंक्रीज हो गया है और एग्जाम्पशन में इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर प्लीज अपने कॉन्सेप्ट में जाकर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। एंजल टैक्स को अबोलिश कर दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। एंजल टैक्स को 2012 से काफी इंप्लीमेंट किया जा रहा था, लेकिन ये बताया जाता है कि फॉरेन कंट्रीज से और इंडिया से भी जो फंडिंग आती है उस पर काफी क्वेश्चन मार्किंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे उनकी स्क्रूटनी हो रही थी, इंस्पेक्टर राज हो रहा था। 2023 के बजट में भी इसमें टाइटन किया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा रिलैक्स कर दिया कंप्लीटली, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हम क्रूज
टूरिज्म को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और सेफ हार्बर रेट्स फॉर द फॉरेन माइनिंग कंपनीज, जो माइनिंग कंपनीज हैं उनको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, और फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स कम कर दिए हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे FDI आए 40% से 35% हो गया है। सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजीम, तो जो आपके इनकम टैक्स रिजीम है वो दो हैं, एक न्यू है एक ओल्ड है। ओल्ड रिजीम में टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं, न्यू में डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जो ओल्ड रिजीम होता है वहाँ पर जो डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं उसकी वजह से वहाँ पर रेट ऑफ टैक्सेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं होती हैं अवेलेबल, यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होता है। तो ये जो स्लैब्स हैं 0 to 3 लाख पे कोई आपका टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख पे 5% है, 7 to 10 पे 10%, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो टैक्स रिलीफ दे रही है, और सैलरीड पर्सन के लिए भी और अदर्स के लिए भी वो इंसेंटिवाइज कर रही है। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फाइन। So with this, we complete the discussion on the Indian budget 2024-2025, which was introduced in July 2024. और I will suggest कि जो भी relevant portions हैं, you will go into the notes, you will go into the book, and वहाँ पर जाके add कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि questions वो है directly, they will not ask about the budget, but they will ask about the major topic of the syllabus, and you need to do the value addition then and there only. जितनी भी नई स्कीम्स आई हैं जैसे NPS वात्सल्य है या जनजातीय उन्नत विलेज, तो ये जो स्कीम्स हैं इसके बारे में और जानकारी आएंगी जैसे जैसे उनको फोकस करना होगा आपको, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक सर्वे आपका आया है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी मैं एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दिस PPT विल बी अवेलेबल टू यू एंड रिवाइज फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।